हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू क्लास। तो आज हम देखने वाले हैं यूपी से रिलेटेड करंट अफेयर्स। बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेसिफिकली इस बार काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि मेंस में भी यूपी स्पेशल पोर्शन इंक्लूड कर दिया गया है एंड प्रीलिम्स में भी इससे काफ़ी क्वेश्चंस आने के चांसेस हैं। सो लेट्स सी यूपी स्पेशल करंट अफेयर्स। The first one is 75 lakh tap water connections provided in state. उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने जनवरी 31, 2023 को सेलिब्रेट किया as reaching the milestone of installing 75 lakh tap water connections in the state. A total of more than 75 lakh 26,740 rural households have been provided tap water connections. बिहार टॉप करता है लिस्ट को with more than 1.58 crore connections, followed by Maharashtra with more than 1.6 crore connections, followed by Gujarat with more than 91 lakh connections. पर यूपी ने more than 75 lakh रूरल हाउस में पहुंचाया है ये। दिस इज सबसे पहले बिहार है, उसके बाद में आता है महाराष्ट्र एंड देन गुजरात, पर यूपी में 75 है। The event also featured the screening of a government film, Har Ghar Pani Khud Nigarani, and the release of an e-book on the successful journey of 2 years of the Jal Jeevan Mission and the listing the achievement of the department. PM Shri scheme to upgrade over 1700 schools in Uttar Pradesh. Recently, Uttar Pradesh के Chief Minister Yogi Adityanath ने start की है a school which would be equipped and upgrade the PM Shri scheme. During the Uttar Pradesh budget 2023, the state government has allocated more than 1,000 crores for the PM Shri scheme. PM Shri scheme है क्या? जाके आप सब लोग PM Shri scheme के फुल फॉर्म देखिए PM Shri का, उसके बाद में पर्पस देखिए PM Shri का, तो इससे आपको आइडिया लग जाएगा PM Shri है क्या। यूपी गवर्नमेंट एड्स 55 विलेजेस टू येईडा टेरिटरी, YEIDA। ये होता क्या है सबसे पहले तो दिस इज यमुना एक्सप्रेस वे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी, YEIDA टेरिटरी। उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने February 3, 2023 को 55 विलेजेस ऐड कर दी हैं फ्रॉम खुर्जा एंड सिकंदराबाद तहसील एरियाज इन बुलंदशहर डिस्ट्रिक्ट टू द यमुना एक्सप्रेस वे येईडा टेरिटरी। अ टोटल नंबर ऑफ नोटिफाइड विलेजेस इन द येईडा हैज नाउ गॉन अप टू 1,242. The authority area has been extended to Delhi-Howrah railway route, dedicated freight corridor and New India. New Vidhan Bhavan to be built in Uttar Pradesh on lines of Central Vista. उत्तर प्रदेश असेंबली स्पीकर श्री सतीश महाना ने कहा कि उत्तर प्रदेश को नया विधान भवन मिलेगा ऑन द लाइंस ऑफ कंट्रीज न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग दैट इज सेंट्रल विस्टा। उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट हैज मेड टोकन बजटरी प्रोविजंस ऑफ 50 crore फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ द न्यू बिल्डिंग ऑन द लाइंस ऑफ सेंट्रल विस्टा इन दिल्ली इन द स्टेट कैपिटल। The present Vidhan Sabha was inaugurated on February 21, 1928 and its chief architects were Sir Swinton Jacob and Hira Singh. कौन थे इनके चीफ आर्किटेक्ट्स? सर स्विंटन जेकब एंड हीरा सिंह। प्रेजेंट विधानसभा इनॉग्रेट हुई थी February 21, 1928 को। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। Bareilly division tops UP's development index. The Bareilly division has emerged as the best on the scale of development in the ranking released by the Program Implementation Department of Uttar Pradesh. The division has secured the first position in the entire state in the implementation of government schemes in the category of divisions. Along with Bareilly division, Saharanpur division को भी ने भी अच्छा परफॉर्म किया है। वाराणसी, लखनऊ, मेरठ को भी इंक्लूड किया गया टॉप 5 डिविजन्स में। ऑन द अदर हैंड बरेली, बॉर्डन, Shahjahanpur and Pilibhit districts of Bareilly division have secured first place in the category of districts. 5 rural learning centers will be built in Bareilly division of Uttar Pradesh. D.D. Mahendra Singh of Panchayati Raj division of Uttar Pradesh told that 5 learning centers will be set up in Bareilly division of the state in which training will be given to the villagers at the village level. UP Commission on OBC quota in local bodies submits report. UP State Local Bodies Dedicated Backward Classes Commission ने रिपोर्ट सबमिट की चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ को। ये 2023 में सबमिट हुआ। कमीशन वाज सेट अप टू फिक्स रिजर्वेशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस इन द सिविक इलेक्शंस।
स्टेट गवर्नमेंट ने 2022 में कॉन्स्टिट्यूट की थी 5 मेंबर कमीशन अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ रिटायर्ड हाई कोर्ट जज राम अवतार सिंह. The commission has submitted the report. After this, giving the information of the report to the Supreme Court, permission was sought to hold civic elections in Uttar Pradesh. Recently, April 2023 में स्टेट इलेक्शन कमीशन ने अनाउंस किया उत्तर प्रदेश सिविक पोल्स को, जो कि होंगे 2 फेजेस में, May 4 और May 11 को, with the counting of votes for both phases scheduled on May 13, 2023. Obviously, अब जब तक हम देख रहे हैं ये हो चुका है ऑलरेडी. बाद में आपके एग्जाम्स के राउंड अबाउट होगा. UP to junk all government vehicles older than 15 years. उत्तर प्रदेश कैबिनेट चेयर्ड बाय चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ ने 2023 में अप्रूव कर दिया प्रपोजल ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट न्यू व्हीकल स्क्रैपिंग पॉलिसी. इस पॉलिसी के अंदर उत्तर प्रदेश विल रिसीव 300 करोड़ फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट. इसके अंदर स्क्रैपिंग ऑफ गवर्नमेंट व्हीकल्स 15 ईयर्स और मोर ओल्डर होंगे, वो इन द रजिस्टर्ड व्हीकल स्क्रैपिंग फैसिलिटी में होंगे वो स्क्रैप. न्यू यूपी स्पोर्ट्स Policy 2023. Uttar Pradesh Cabinet approved by UP Sports Policy 2023 in a cabinet meeting chaired by the Chief Minister Yogi Adityanath on March 10, 2023. State will set up 14 centers of excellence, each centered around a particular sport. There is a provision to establish a state sports authority on the lines of Sports Authority of India (SAI). Additionally, the state will put in place a state sports development fund. Each registered player will receive a health insurance cover of 5 lakh from the state government. A sports center will be established in each district. Indian Grasslands and Fodder Research Institute inaugurated at Jhansi. यूनियन एग्रीकल्चर फार्मर्स वेलफेयर मिनिस्टर श्री नरेंद्र सिंह तोमर ने इनॉग्रेट किया द सीड प्रोसेसिंग एंड स्टोरेज फैसिलिटी. कहाँ पे? इंडियन इंस्टीट्यूट एंड ग्रासलैंड रिसर्च इंस्टीट्यूट झांसी में. आपसे सिर्फ ये देके पूछ सकता है कि इंडियन ग्रासलैंड एंड ग्रासलैंड रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पे है यूपी में, तो उसका आंसर है झांसी में है. इट इज एन इंस्टीट्यूशन अंडर द इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च ICAR के अंडर ये आता है. Apart from the institute headquarter, 3 units of this type of seed processors have been installed at the regional research centers located at Dharwad and Srinagar, which have been fully funded by the Ministry of Agriculture for 3.7 crore. Uttar Pradesh Township Policy 2023, March 14, 2023 में उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने अनाउंस किया that it is going to amend several rules to meet the residential needs of the people in the cities. इसके लिए उत्तर प्रदेश टाउनशिप पॉलिसी 2023 was presented before Chief Minister Yogi Adityanath. The proposed Uttar Pradesh Township Policy 2023 will allow setting up of colonies on a minimum of cities with a population of less than 2 lakh, 12.5 acres of land in other cities and 25 acres. To reach the colonies, 24 meters of road will be mandatory and 12 meters inside. थोड़ा सा देख लेते हैं, हल्का सा कॉम्प्लिकेटेड है, मैं एक बार आपको फिर से बता देती हूँ. इस उत्तर प्रदेश टाउनशिप पॉलिसी 2023 में अलाउ करेगा सेटिंग अप ऑफ कॉलोनीज ऑन अ मिनिमम ऑफ सिटीज विद अ पॉपुलेशन ऑफ लेस देन 2 लाख. 2 लाख से कम की पॉपुलेशन में भी सेट हो सकती हैं 12.5 एकर्स ऑफ लैंड में, और बाकी सिटीज में 25 एकर्स ऑफ लैंड में सेट हो सकती हैं. मिनिमम पॉपुलेशन जिसकी लेस देन 2 लाख है वहां पे 12.5 एकर्स ऑफ लैंड में, और बाकी सिटीज में 25 एकर्स ऑफ लैंड. 4 new private universities will open in उत्तर प्रदेश. March 10, 2023 में कैबिनेट मीटिंग में ये बोला गया कि लेटर्स ऑफ इंटेंट भी इशू कर दिए गए टू 4 new private universities. These universities include वरुण अर्जुन यूनिवर्सिटी शाहजहांपुर, नाम देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट है, पूछ सकते हैं. TS मिश्रा यूनिवर्सिटी लखनऊ, फारूक हुसैन यूनिवर्सिटी आगरा एंड विवेक नेशनल यूनिवर्सिटी बिजनौर. ऑनलाइन गेम ऐप शास्त्रा मेड फॉर लर्निंग संस्कृत. तो शास्त्रार्थ एक ऐप है लर्निंग करने की, संस्कृत सीखने के लिए. डॉक्टर अरुण्य मिश्रा ने क्रिएट किया ऑनलाइन गेमिंग ऐप फॉर लर्निंग संस्कृत विच इज नेम शास्त्रार्थ. ही इज प्रीवियसली द चेयरमैन ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ संस्कृत एट एविंग क्रिश्चियन कॉलेज ECC, एक कॉन्स्टिट्यूएंट कॉलेज है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का उत्तर प्रदेश में. Shastrath app will not only be useful for learning Sanskrit in sports but also for preparing for competitive exams. उत्तर प्रदेश टॉप चार्ट फॉर मोबाइल गैम्बलिंग. उत्तर प्रदेश ने टॉप किया है
location for mobile gamers, which is followed by Maharashtra, Rajasthan, Bihar and West Bengal, according to Indian Mobile Gaming Report 2022, जो रिलीज की है मोबाइल प्रीमियर लीग ने, एक गेमिंग प्लेटफॉर्म है मोबाइल प्रीमियर लीग। इंडिया ने ओवरटेक कर लिया जापान को एज अ टॉप यूजर ऑफ मोबाइल गेम्स इन 2016। इंडिया का गेमिंग मार्केट वर्थ है 2.6 बिलियन इन द फिस्कल ईयर 2022 with over 15 billion downloads and with a compound annual growth rate CAGR of 27%, it would increase to 8.6 बिलियन बाय 2027 तक ये 8.6 बिलियन हो जाएगा। इसका कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट है 27%। 9 नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट्स इन महोबा। यूनियन मिनिस्टर ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे श्री नितिन गडकरी ने इनॉग्रेट किए 9 नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट्स इन महोबा उत्तर प्रदेश। ये इन्वेस्टमेंट है 3,500 करोड़ का। श्री गडकरी ने अनाउंस किया 4 लेनिंग ऑफ 258 किलोमीटर रामवनगमन रोड इन चित्रकूट। रामवनगमन रोड इन चित्रकूट, इसकी 4 लेनिंग अनाउंस की। बाकी ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आप इसे छोड़ सकते हैं। बस ये देख लीजिए, अलॉन्ग विद 4 लेनिंग ऑफ 70 किलोमीटर स्ट्रेच फ्रॉम प्रयागराज टू मिर्जापुर NH76E। कौन सा नेशनल हाईवे है? NH76E। इनफैक्ट आई वुड एडवाइस यू ऑल टू गो एंड सी कि आपके कौन कौन से नेशनल हाईवेज हैं जो उत्तर प्रदेश से पास होते हैं और कौन सी इंपॉर्टेंट सिटीज से, जैसे इंपॉर्टेंट सिटीज लखनऊ, वाराणसी, इनसे कौन से नेशनल हाईवेज पास होते हैं। चीफ मिनिस्टर रोड इम्प्रूवमेंट स्कीम। चीफ मिनिस्टर रोड इम्प्रूवमेंट स्कीम देख लेते हैं, किसने लॉन्च की। चीफ मिनिस्टर रोड इम्प्रूवमेंट स्कीम लॉन्च की उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने टू प्रोवाइड बेटर रोड फैसिलिटीज टू द पीपल इन सिटीज। सेवरल अनाउंसमेंट वाज डन इन द उत्तर प्रदेश बजट 2023। Among the major projects for which funds have been allocated are rupees 150 crore for the ropeway service in Varanasi, rupees 585 crore for the Kanpur Metro Rail project, rupees 465 crore for Agra Metro Rail project, and rupees 1,306 crore for Delhi Ghaziabad Meerut Corridor Regional Rapid Transport System project. Another rupees 100 crore have been allocated for the metro rail in Varanasi, Gorakhpur and other cities. To provide better road connectivity in rural areas, 5,966 crores have been allocated under the Pradhan Mantri Gram Sadak Yojana. Homework, Pradhan Mantri Gram Sadak Yojana क्या है? जाइए जाके चेक कीजिए। Another rupees 550 crore have been allocated for Bundelkhand Expressway and Defence Corridor project for development of an industrial corridor on both sides of the Gorakhpur Link Expressway. The government has also proposed to build 6 industrial manufacturing complexes, 4 along the Purvanchal Expressway and 2 along the Bundelkhand Expressway. The government will spend rupees 1,000 crore on development of religious routes and rupees 50 crore on construction of 4-lane roads and industrial and logistics parks. Uttar Pradesh Global Investor Summit 2023 मोदी जी ने इनॉग्रेट की थी लखनऊ में। उन्होंने साथ ही साथ में इनॉग्रेट किया ग्लोबल ट्रेड शो and launched Invest UP 2.0. Around 10,000 delegates आए थे, 400 participants थे from 41 countries. बाकी बहुत लोगों ने ये समिट अटेंड की थी। ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट इंपॉर्टेंट क्या है, क्वेश्चन आ सकता है, कहाँ पे हुई थी? लखनऊ में हुई है। ये क्या है? ये दिस इज अ फ्लैगशिप इन्वेस्टमेंट समिट ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश। किस लिए इवेंट इंपॉर्टेंट है? इज इंपॉर्टेंट फॉर द स्टेट which initially set a target to attract investment proposals of rupees 10 lakh crore at UPGIS 2023 and later revised it to 17.3 lakh crore. Purvanchal ki Shaan 2023. In February 2023, Uttar Pradesh Deputy Chief Minister Brajesh Pathak felicitated the personalities who enhanced their glory at the Purvanchal ki Shaan 2023 felicitation ceremony organized by Amar Ujala at a hotel in Lucknow. पूर्वांचल की शान किसको फेलिसिटेट किया? पर्सनालिटीज को फेलिसिटेट किया हु इनहांस्ड देयर ग्लोरी एट द पूर्वांचल की शान 2023 फेलिसिटेशन सेरेमनी लखनऊ में हुई। उत्तर प्रदेश फिल्म पॉलिसी 2023 पॉलिसी क्या है? 2023 फरवरी में से नॉड मिला है। इट प्रोवाइड्स फॉर सब्सिडी ऑफ 50% ऑफ द कॉस्ट ऑफ द फिल्म्स आर मेड इन अवधी, ब्रज, बुंदेली एंड भोजपुरी।
For the films made in English, Hindi or other languages, the subsidy will be 25% of the cost of filmmaking. अब subsidy of 25% or a maximum of rupees 50 lakh would be given for setting up of studios or labs etc. in the state. If the studios or labs are opened in Purvanchal, Vindhyachal and Bundelkhand, the amount would be 35% or a maximum of 50 lakh. New DCGI of the country, Rajiv Raghuvanshi of Balia. अपॉइंटमेंट्स है, इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट है. कैबिनेट ने अप्रूव किया डॉक्टर राजीव सिंह रघुवंशी न्यू ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ द कंट्री. कहाँ के हैं? और बलिया के हैं ये. सेकेंड इंडो इजराइल ट्रॉमा कोर्स एट BHU. इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी ने होस्ट किया 3 दिन का इंडो इजराइल ट्रॉमा कोर्स एंड मास कैजुअलिटी साइंस MCS वर्कशॉप एट ट्रॉमा सेंटर ऑफ BHU वाराणसी उत्तर प्रदेश. 7 National Highway projects in Balia. Union Minister for Road Transport and Highways Mr. Nitin Gadkari ने inaugurate किए 7 National Highway projects in Chitbara village, Balia, Uttar Pradesh. The minister said the greenfield road from Chandoli to Mohania being constructed at the cost of 130 crore will provide connectivity to Chandoli in Uttar Pradesh and Kaimpur district of Bihar through the Delhi-Kolkata GT road. The new connectivity route between Balia Ara through 28-kilometer greenfield spur road at a cost of $181 million, that is 1,500 crore, was also announced. Prime Minister inaugurated Varanasi ropeway project. पहला कंट्री का पहला अर्बन ट्रांसपोर्ट रोपवे काशी वाराणसी में उसका फाउंडेशन स्टोन लेकर दिया गया. इंटायर काशी रोपवे प्रोजेक्ट विल कॉस्ट अराउंड 645 करोड़ टू द एक्सचेकर. रोपवे सिस्टम 3.75 किलोमीटर लेंथ का है. 5 स्टेशन है उसमें. विद्यापीठ, भारत माता मंदिर, रथ यात्रा, गिरजाघर एंड गोडोविलिया चौक. कहाँ पे हुआ है? ये कंट्री का पहला अर्बन ट्रांसपोर्ट रोपवे. बहुत इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल इससे क्वेश्चन आने के पूरे चांसेस हैं. कंट्रीज फर्स्ट अर्बन ट्रांसपोर्ट रोपवे इन काशी वाराणसी. वाराणसी रोपवे प्रोजेक्ट के फीचर्स देख लेते हैं. दिस इज द फर्स्ट अर्बन रोपवे प्रोजेक्ट अंडर द पर्वतमाला परियोजना. इट कैन कैरी 3000 पैसेंजर्स पर आवर पर डायरेक्शन. अबाउट 153 गंडोलास और कैबिन्स विल बी डिप्लॉयड टू कैरी 10 पैसेंजर्स. दिस विल बी ऑपरेशनल फॉर 16 आवर्स अ डे. यूपी बोर्ड रिवाइसेस नॉर्म्स फॉर प्राइवेट स्कूल्स एफिलिएशन. दीपक कुमार, प्रिंसिपल सेक्रेटरी ऑफ उत्तर प्रदेश बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, ने कहा कि स्टेट बोर्ड हैज मेड इट मैंडेटरी टू हैव 3000 स्क्वायर मीटर्स ऑफ लैंड फॉर ओपनिंग प्राइवेट स्कूल्स इन अर्बन एरियाज. ये पहले 650 स्क्वायर मीटर्स था. सिमिलरली 6000 स्क्वायर मीटर्स ऑफ लैंड हो गया है रूरल एरियाज में, जो पहले 2000 स्क्वायर मीटर्स था. It has been made necessary to have smart class, computer class and various resources. Self-sustainable mode for gaushalas. Chief Minister Yogi Adityanath ने stress किया the need for developing a self-sustainable model for running gaushala and said that gaushalas should be constructed in public-private participation PPP mode. उन्होंने कहा कि cow shelters should be linked to natural farming, cow dung plant, CNG and CBG compressed biogas. अब इम्पॉर्टेंट ये है, आप यहाँ पे जाके देखिए, आपका होमवर्क ये है. काउ डंग प्लांट, इसमें कौन सी गैसेस होती हैं ये देखिए. कौन सी गैसेस से इसमें ये काउ डंग से क्या क्या प्रोड्यूस होता है, क्या एनर्जी प्रोड्यूस होती है, क्या होता है बेसिकली काउ डंग प्लांट में, कौन सी गैसेस इन्वॉल्व होती है वो देखिए. CNG में कौन सी गैसेस इन्वॉल्व होती है ये देखिए. और कंप्रेस्ड बायोगैस CBG में भी जाके आप चेक करिए. मैंने आपको पुराने वीडियोस में बताया है CNG में कौन सी गैसेस होती हैं, या अपनी जो हम कुकिंग गैस होती है वो यूज़ करते हैं. LPG में कौन सी गैसेस होती है. पर अब इस वीडियो में जो नए यूजर्स हैं आप जाइए और ये जाके चेक कीजिए. सी इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू लुक एट बैकवर्ड लिंकेजेस. जब तक आप ये बैकवर्ड लिंकेजेस नहीं देखेंगे फिर आप सोचेंगे कि एग्जाम में क्वेश्चन कहाँ से आ गया. इन्हीं से क्वेश्चन आता है. माउस Dakshini Pandey's car security model. Dakshini Pandey, 17 years, daughter of a poor farmer in Mau district of Uttar Pradesh, was selected on the basis of her car safety model with 100% scholarship at Stanford University in California, USA. She is currently studying in class 12. First Spinal Injury Rehabilitation Center of the country, BHU, Uttar Pradesh. यूनियन मिनिस्ट्री, हेल्थ मिनिस्ट्री ने इन प्रिंसिपल कंसेंट दे दिया है ओपन करने के लिए कंट्री का पहला फर्स्ट स्पाइनल इंजरी रिहैबिलिटेशन सेंटर BHU ट्रॉमा सेंटर में
स्पाइनल इंजरी रिहैबिलिटेशन सेंटर प्रोवाइड करेगा फैसिलिटीज फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऑफ ब्रेन, स्पाइनल, न्यूरो, ophthalmic injury as well as treatment with traditional medicine. Such a treatment facility is currently in Australia. Neuro-ophthalmic injury याद रखिए, as well as treatment with traditional medicine, दोनों का कॉम्बिनेशन है. ट्रांसपोर्ट नगर inaugurated in Aligarh. Inaugurated by Minister of State for Basic Education Sandeep Singh, MP Satish Gautam, MLA Rajkumar Sahai. District level investor summit held at Habitat Center in Aligarh district of Uttar Pradesh. Registration for allotment of plots in Transport Nagar has been started from February 18, 2023. It has a total of 1803 plots. Second phase of Sansad Khel Mahakumbh 2022-23 in Basti district. प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी ने इनॉग्रेट किया सेकेंड फेज ऑफ संसद खेल महाकुंभ वाया वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और जनवरी 18, 2023. संसद खेल महाकुंभ हैज बीन ऑर्गेनाइज्ड इन बस्ती डिस्ट्रिक्ट बाय श्री हरीश द्विवेदी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट फ्रॉम बस्ती. उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान. उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट सेक्रेटरी रघुनाथ प्रसाद वर्मा ने कहा ऑन द लाइन्स ऑफ यश भारती अवार्ड ऑफ द समाजवादी पार्टी गवर्नमेंट ऑफ द स्टेट, नाउ द स्टेट गवर्नमेंट विल ऑल्सो अवार्ड उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान टू द पर्सनैलिटीज हु हैव ब्रॉट ग्लोरी टू द स्टेट इन द कंट्री एंड अब्रॉड. उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने स्टॉप कर दिया यश भारती अवार्ड को, 2 साल पहले स्टॉप कर दिया गया था. अब उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान वो लेके आई हैं जिन्होंने नाम बढ़ाया है उत्तर प्रदेश का इन द कंट्री एंड अब्रॉड. Under the Yash Bharati Award, rupees 11 lakh was given to such personalities. The nominees for this honor must be a native of Uttar Pradesh. कुछ इंपॉर्टेंट लोगों को ये दिया गया, देख लेते हैं. बहरीच रेसिडेंट पोएट योगेंद्र योगी has recently been honored with this सम्मान. He got this honor for his better performance in the field of literature. पोएट योगेंद्र योगी बहरीच के हैं, लिटरेचर के लिए उन्हें मिला है. शुभी गुप्ता इंडिया के लिए लॉरेल्स लेके आई थी बाय विनिंग गोल्ड मेडल इन द अंडर 12 वर्ल्ड कैडेट चेस चैंपियनशिप 2022. उनको भी ये अवार्ड मिला. साथ ही साथ में ऑल इंडिया चेस एसोसिएशन प्रेसिडेंट डॉक्टर संजय कपूर को भी ऑनर किया गया उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान के साथ में, जिन्होंने सक्सेसफुली कंडक्ट किया था 44th चेस ओलंपियाड. 44th चेस ओलंपियाड इंडिया में हुआ है, याद रखिए. Islands of Andaman and Nicobar named after 4 Paramveer Chakra winners of Uttar Pradesh. 21 islands of Andaman and Nicobar नेम किए थे after the recipients of India's highest military decoration Paramveer Chakra. 3 of the 4 Paramveer Chakra winners from Uttar Pradesh. Company Quarter Master Havildar Veer Abdul Ahmed, Naik Jadunath Singh, Lieutenant Manoj Kumar Pandey have been awarded Paramveer Chakra posthumously and honorary Captain Yogendra Singh Yadav while alive. During his visit to Andaman Nicobar Islands in the year 2018, Prime Minister ने नेम किया था Ross Islands as नेताजी सुभाष चंद्र बोस आइलैंड. नील आइलैंड एंड हैवलॉक आइलैंड को भी रीनेम कर दिया गया था एज शहीद द्वीप एंड स्वराज द्वीप. ये क्वेश्चन बहुत बार पूछ लेते हैं कि कौन से आइलैंड का क्या नाम है. रॉस आइलैंड को नेम किया था नेताजी सुभाष चंद्र बोस आइलैंड, नील को नेम किया है शहीद द्वीप एंड हैवलॉक को नेम किया है स्वराज द्वीप. नील शहीद, हैवलॉक स्वराज, रॉस नेताजी सुभाष चंद्र बोस. और उन लोगों के नाम देख लेते हैं जो यूपी से थे जिनके नाम पे आइलैंड का नेम हुआ है. कंपनी क्वार्टर मास्टर हवलदार वीर अब्दुल अहमद, दूसरा है नायक जादूनाथ सिंह, तीसरा है लेफ्टिनेंट मनोज कुमार यादव और चौथा है ऑनररी कैप्टन योगेंद्र सिंह यादव. Uttar Pradesh became the state with maximum electricity connections in the country. 27 जनवरी डेट पूछी जा सकती है इसकी, इंपॉर्टेंट है ये. 27 जनवरी 2023 उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन चेयरमैन M. Devraj said that with the issuance of 1.47 crore new electricity connections in just 8 years, उत्तर प्रदेश बन गया है the state with the highest electricity consumers in the country. उत्तर प्रदेश को फॉलो करता है महाराष्ट्र नंबर 2 पे और 3rd पे आता है तमिलनाडु. द नंबर ऑफ डोमेस्टिक कंज्यूमर्स इन उत्तर प्रदेश कितने हैं? 2.74 करोड़ हैं. 2.40 करोड़ महाराष्ट्र में है एंड 2.20 करोड़ तमिलनाडु में है.
2.74 करोड़ डोमेस्टिक कंज्यूमर्स हैं उत्तर प्रदेश में, याद रखिएगा, एंड 1.47 करोड़ न्यू इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन सिर्फ पिछले 8 साल में मिले हैं। डिजी यात्रा एट वाराणसी एयरपोर्ट, गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किया है पेपरलेस एंट्री सेलेक्टेड एयरपोर्ट्स में ताकि एयर ट्रैवल को हैजल फ्री बनाया जा सके। द एयरपोर्ट विल यूज फेशियल रिकॉग्निशन सॉफ्टवेयर जिसको बोलते हैं डिजी यात्रा फॉर एंट्री, विच मीन्स पैसेंजर्स वोंट नीड टू कैरी देयर आईडी कार्ड्स एंड बोर्डिंग पास। सिविल एविएशन मिनिस्टर ज्योतिराव सिंधिया ने लॉन्च किया डिजी यात्रा इन द नेशनल कैपिटल। इन द फर्स्ट फेज it will be launched at 7 airports. It was initially launched at 3 airports, Delhi, Bangalore, Varanasi, and it will be followed by 4 airports, namely Hyderabad, Kolkata, Pune, Vijayawada by March 2023. पहले 7 एयरपोर्ट्स में लॉन्च, पहले टोटल 7 एयरपोर्ट्स में लॉन्च होगा। पहले 3 एयरपोर्ट्स में लॉन्च हुआ है, दैट इज दिल्ली, बेंगलुरु, वाराणसी, और इसको फॉलो करा जाएगा बाय हैदराबाद, कोलकाता, पुणे एंड विजयवाड़ा इन बाय मार्च 2023। मुख्यमंत्री मत्स्य संपदा योजना, उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है मुख्यमंत्री मत्स्य संपदा योजना ऑन द लाइंस ऑफ प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना। एम क्या है स्कीम का? टू इंक्रीज द इनकम ऑफ फार्मर्स and increase the production of fishes in ponds of villages. Increase करना income of farmers and increase the production of fishes in the ponds of villages. This scheme will be implemented for 5 years, 2022-23 and 2026-27. इस scheme के accordingly government will set up 100 fish seed banks in ponds. वन डिस्ट्रिक्ट वन स्पोर्ट स्कीम, उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने लॉन्च की है वन डिस्ट्रिक्ट वन स्पोर्ट ODOS प्रोग्राम फॉर प्रमोटिंग लोकल स्पोर्टिंग टैलेंट। अकॉर्डिंग टू ऑफिशियल्स, वन स्पोर्ट विल बी आइडेंटिफाइड इन ईच ऑफ द 75 districts of Uttar Pradesh. Under one district one sport ODOS scheme, players will get training in specified sport for their district to play both at national and international events. मुंदेरा बाजार एंड तेलिया अफगान विलेज, उत्तर प्रदेश मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने अप्रूवल दे दिया है उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने टू चेंज द नेम ऑफ गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट्स मुदेरा बाजार म्यूनिसिपल काउंसिल टू चौरी चौरा एंड देवरिया डिस्ट्रिक्ट्स तेलिया अफगान विलेज टू तेलिया शुक्ला। जाइए जाके देखिए चौरी चौरा कौन से ईयर में हुआ, किस इवेंट से एसोसिएटेड है चौरी चौरा, और ये तेलिया अफगान विलेज को अगर तेलिया शुक्ला बोला गया है तो क्यों बोला गया है आखिरकार? दिस इज योर होमवर्क, गो एंड चेक। बर्ड फेस्टिवल 2023, योगी गवर्नमेंट विल ऑर्गेनाइज बर्ड फेस्टिवल दिस टाइम इन बुंदेलखंड टू प्रमोट द टूरिज्म ऑफ बुंदेलखंड एंड इवेंट विल बी हेल्ड एट विजय सागर बर्ड सेंचुरी इन महोबा फ्रॉम February 1 to 3, 2023। अब देखिए ये जैसे क्वेश्चन है, क्वेश्चन कैसे फेम हो सकता है कि बर्ड फेस्टिवल तो होगा, बुंदेलखंड में ऑर्गेनाइज होगा, टूरिज्म बुंदेलखंड को इससे प्रमोट होगा। अब यहाँ पे ये होगा कहाँ पे? विजय सागर बर्ड सेंचुरी में। तो सीधे सीधे आपसे पूछ लेंगे विजय सागर बर्ड सेंचुरी कहाँ पे है? महोबा में है। दिल्ली मेरठ रीजनल रैपिड ट्रांसिट सिस्टम ट्रेन, कंट्री का पहला रैपिड ट्रेन ऑन ट्रैक बिटवीन दुहई डिपो टू शहीबाबाद गाजियाबाद स्टेशन सक्सेसफुली टेस्ट हो गया। Passengers will get a chance to travel in rapid train from March 2023. The National Capital Regional Transport Corporation NCRTC, the agency implementing the Regional Rapid Transit System RRTS, कंट्री का पहला रैपिड रेल ट्रैक रैपिड ट्रेन ऑन ट्रैक कहां पे हुआ है? बिटवीन दुहई डिपो ऑफ शहीबाबाद गाजियाबाद, दुहई डिपो टू शहीबाबाद गाजियाबाद। दुहई डिपो एकदम टंग ट्विस्टर जैसा नाम है तो ध्यान से याद करने का कोशिश कीजिएगा। दुहई डिपो टू शहीबाबाद गाजियाबाद। नेशनल कैपिटल रीजनल ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन NCRTC की द एजेंसी इंप्लीमेंटिंग द रीजनल रैपिड, यही एजेंसी है जो रीजनल रैपिड ट्रांसिट सिस्टम को इंप्लीमेंट कर रही है। लॉन्गेस्ट रिवर वोएज, नरेंद्र मोदी ने लॉन्च की वर्ल्ड की लॉन्गेस्ट रिवर क्रूज MV गंगा विलास ऑन January 13, 2023 इन वाराणसी। ये लग्जरी क्रूज कवर करती है डिस्टेंस ऑफ मोर देन 3,200 किलोमीटर अक्रॉस 27 रिवर सिस्टम्स इन 5 स्टेट्स इन इंडिया एंड बांग्लादेश। कंट्रीज लार्जेस्ट सिटी फॉरेस्ट, कंट्री का लार्जेस्ट सिटी फॉरेस्ट डेवलप हो रहा है उत्तर प्रदेश में इन द टेम्पल सिटी ऑफ वृंदावन। Subhri Nagar 1 is being developed by the State Forest Department on 130 hectares of land near Sunarak village in Vrindavan.
सौभरी नगर वन, याद रखिए क्या है, सौभरी नगर वन। State's first cow sanctuary. In December 2022, the first cow sanctuary in Uttar Pradesh has been proposed on 70 hectares of land in Chandan village of Purkaji block in Muzaffarnagar. स्टेट का फर्स्ट काउ सेंचुरी लॉन्च कहाँ पे हुआ है? चंदन विलेज ऑफ पुरकजी ब्लॉक इन मुजफ्फरनगर, चंदन विलेज ऑफ पुरकजी ब्लॉक इन मुजफ्फरनगर। अटल स्वास्थ्य मेला, चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ ने इनॉग्रेट किया है 2-day अटल स्वास्थ्य मेला एट विकास नगर मिनी स्टेडियम लखनऊ टू मार्क द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर एंड लखनऊ एमपी अटल बिहारी वाजपेयी। Glass Sky Walk, Uttar Pradesh will get its first glass sky walk at the Tulsi waterfall in Chitrakoot. It was initially called Shabri waterfall, but earlier this year the state government changed its name to Tulsi waterfall. पहला ग्लास स्काई वॉक, क्या होता है ग्लास स्काई वॉक? आपने बहुत सारी वीडियोस देखी होंगी, ऐसा एक पुल टाइप होता है दो जगहों के बीच में और ये पूरा ग्लास से बिल्ड होता है, तो आप नीचे देख सकते हैं। इट इज वेरी स्कैरी टू जनरली क्रॉस दिस, तो वैसा ही पहला ग्लास स्काई वॉक तुलसी वाटरफॉल चित्रकूट में इनॉग्रेट होगा। पहले इसका नाम शबरी वाटरफॉल था, पर गवर्नमेंट ने चेंज करके तुलसी वाटरफॉल कर दिया। क्लीन एयर सर्वे 2022, 3 यूपी सिटीज लखनऊ, प्रयागराज, वाराणसी बैक किया है टॉप 3 स्लॉट्स अमंग द 47 सिटीज विद पॉपुलेशन ऑफ ओवर 10 लाख इन द स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2022 क्लीन एयर सर्वे, जो कि कंडक्ट करता है यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज MEFCC अंडर इट्स नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम। लखनऊ को डिक्लेयर किया गया नंबर 1 सिटी इन द नेशनल रैंकिंग ऑफ क्लीन एयर सिटी एंड रिसीव्ड अवार्ड ऑफ 1.50 करोड़ अलॉन्ग विद द साइटेशन। कौन सी टॉप 3 यूपी सिटीज हैं? लखनऊ, प्रयागराज, वाराणसी, स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2022। नेक्स्ट इज रानीपुर टाइगर रिजर्व। रानीपुर टाइगर रिजर्व को उत्तर प्रदेश का अप्रूव कर दिया गया है एज 53rd टाइगर रिजर्व ऑफ इंडिया। Besides this, it is also the 4th tiger reserve in Uttar Pradesh. Ranipur Tiger Reserve located है बुंदेलखंड region of Uttar Pradesh में। Apart from Ranipur, the state has 3 tiger reserves, Dudhwa, Piliphit and Amangarh. 53rd टाइगर रिजर्व रानीपुर, इसके अलावा 3 टाइगर रिजर्व्स हैं, दुधवा, पीलीभीत, अमनगढ़। उमा सिंह ऑफ गोरखपुर क्लाइम्स माउंट फ्रेंडशिप बाय बाइसिकल। उमा सिंह ने गोरखपुर ने क्या किया है? हिस्ट्री क्रिएट की है इन द फील्ड ऑफ माउंटेनियरिंग, कॉन्करिंग द पीक ऑफ माउंट फ्रेंडशिप इन मनाली इन हिमाचल प्रदेश with a bicycle and thus becoming the first mountaineer to reach the top of this mountain on a bicycle. अब क्वेश्चन क्या आ जाएगा आपके पास? ऐसा क्वेश्चन आ सकता है माउंट फ्रेंडशिप, क्या ये इंडिया में है? क्योंकि इसका नाम माउंट फ्रेंडशिप है, थोड़ा ऐसा इंडियन नेम जैसा नहीं लग रहा, पर ये इंडिया में है, मनाली में है। She has also climbed the top of Africa's highest peak, Mount Kilimanjaro in Tanzania. क्वेश्चन आ सकता है माउंट किलिमंजारो कौन से कॉन्टिनेंट में है? अफ्रीका में है। कौन सी कंट्री में है? तंजानिया में है। कन्वेंशन सेंटर इन गोरखपुर, एक बड़ा कन्वेंशन सेंटर इनॉग्रेट हुआ है गोरखपुर में, जिसकी सीटिंग कैपेसिटी 3000 से 5000 के बीच में है। खेलो इंडिया नेशनल यूनिवर्सिटी गेम, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स हेल्ड हुए अप्रैल 2023 में इन द कंट्री, विल बी हेल्ड अप्रैल 2023 में हेल्ड हुए उत्तर प्रदेश में। खेलो इंडिया नेशनल यूनिवर्सिटी गेम्स कहाँ पे हुए थे? 4 सिटीज में हुए थे, लखनऊ, गोरखपुर, वाराणसी एंड नोएडा। लखपति महिला कार्यक्रम उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट स्टार्ट करने वाली है, लखपति महिला कार्यक्रम टू मेक द वुमेन ऑफ द स्टेट फाइनेंशियली मोर केपेबल, थ्रू विच 15 लाख women will be made millionaires in the first 3 years. In the first phase of Lakshmati Mahila Karyakram, it will be launched in 11 districts. Police Commissioner System. In November 2022, the 3 new police commissioners of Uttar Pradesh, namely Agra, Ghaziabad and Prayagraj, got their first police commissioners. Systems already exist in Lucknow, Kanpur, Varanasi and Gautam Budh Nagar. पुलिस कमिश्नरेट सिस्टम क्या होता है? आपने ये तो देख लिया पुलिस कमिश्नरेट सिस्टम आया, पर होता क्या है पुलिस कमिश्नरेट सिस्टम? आपके पास 4 ऑप्शन आ सकते हैं, क्या ये होता है पुलिस कमिश्नरेट, क्या ये होता है, क्या ये होता है, क्या ये होता है, आपको उनमें से आइडेंटिफाई करना होगा। तो एक बार जाके चेक कीजिए पुलिस कमिश्नरेट सिस्टम क्या होता है। 3 नई जगह में होगा ये, आगरा, गाजियाबाद और प्रयागराज में होगा। पहले से कहां कहां पे है? लखनऊ, कानपुर, वाराणसी और गौतम बुद्ध नगर में है। उत्तर प्रदेश सोलर एनर्जी पॉलिसी 2022, उत्तर प्रदेश एम करता है टू जनरेट
22 megawatt solar power over the next 5 years 2026 to 27 under the state's government solar policy 2022. UP Solar Policy 2022 will be applicable for 5 years or notification of the new policy. Ayodhya, Noida and 16 Nagar Nigams of state will be deployed as solar cities. State of the court will be built in all districts of Uttar Pradesh. इंटीग्रेटेड कोर्ट कॉम्प्लेक्सेस बनेंगे 10 डिस्ट्रिक्ट्स में इनिशियली, उसके बाद में बाकी डिस्ट्रिक्ट्स में भी बनेंगे. डिस्ट्रिक्ट्स को पायलट प्रोजेक्ट जैसे सेलेक्ट किया गया है विच एम्स टू हाउस ऑल कोर्ट्स ऑफ अ डिस्ट्रिक्ट अंडर वन रूफ. दीज आर महोबा, हथरस, चंदौली, शामली, अमेठी, हापुर, औरैया, सोनभद्रा, संभल एंड चित्रकूट. पहले इनमें पायलट प्रोजेक्ट जैसे सारे अब ये आप आई डोंट नो क्या आप समझ पा रहे हैं कि उनका जब कहने का मतलब है कि सारे कोर्ट्स एक रूफ के अंडर होंगे. बहुत अलग अलग कोर्ट्स होते हैं. रेवेन्यू कोर्ट्स होता है, रेवेन्यू कोर्ट हो गया, सिविल कोर्ट हो गया, तो ऐसे ऐसे कोर्ट्स होते हैं. तो उन सबको एक प्रीमिसेस के अंडर करना चाह रहे हैं. इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट ICP लैंड पोर्ट. Integrated check post land port will be built on 120-acre campus on the lines of airport at Sonauli, the international exit point of Buddhist circuit of अब देखिए थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड नेम फिर से लग रहा है. महारजगंज, एकदम टंग ट्विस्टर जैसा है. महारजगंज, बुद्धिस्ट सर्किट ऑफ महारजगंज. 120 एकड़ कैंपस के ऑन द लाइन्स ऑफ एयरपोर्ट एट सोनौली, महारंजगढ़ में इंटरनेशनल एग्जिट पॉइंट होगा. इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट लैंड पोर्ट बिल्ट होगा 120 एकड़ कैंपस में ऑन द लाइन्स ऑफ एयरपोर्ट ऑफ सोनौली, द इंटरनेशनल एग्जिट पॉइंट ऑफ बुद्धिस्ट सर्किट ऑफ महाराजगंज. इंटरनेशनल एग्रीकल्चर रिसर्च सेंटर विल बी एस्टैब्लिश्ड इन गोरखपुर यूनिवर्सिटी. Consortium of International Agriculture Research Center GCIAR will be established at the Institute of Agriculture and Natural Sciences, Deen Dayal Upadhyay, Gorakhpur University, Gorakhpur, Uttar Pradesh. Indian Road Congress 81st Annual Convention of the Indian Road Congress IRC was held in Indira Gandhi Pratishthan in Uttar Pradesh from October 8 to 11, 2022. The IRC, a premier body in the infrastructure sector, will discuss the introduction of new technology and maintenance of roads. 81st Annual Convention of Indian Roads Congress IRC कहाँ पे हेल्ड हुआ? इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान इन उत्तर प्रदेश. IRC क्या है? प्रीमियर बॉडी है इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में जो डिस्कस करेगी इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी एंड मेंटेनेंस ऑफ रोड्स. इंटरनेशनल अभिधम्मा डे. इंटरनेशनल बुद्धिस्ट कॉन्फेडरेशन होस्ट करता है अभिधम्मा डे कॉन्फ्रेंस इन नोएडा, उत्तर प्रदेश. अभिधम्मा डे प्रोग्राम वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट. अब आप लोग का होमवर्क है, जाके चेक कीजिए अभिधम्मा डे क्यों सेलिब्रेट करा जाता है, क्या मतलब है अभिधम्मा का. जागृति यादव ऑफ लखनऊ बिकेम UK हाई कमिश्नर फॉर अ डे. 12 साल की जागृति यादव लखनऊ उत्तर प्रदेश की स्पेंड किया एज UK's top diplomat in India after winning the 6th edition of High Commissioner for a Day competition. Uttar Pradesh Electric Vehicle Manufacturing and Mobility Policy 2022, Electric Vehicle Policy 2022 रोल की गई to attract investments and promote faster EV adoption in state. It has also been decided to give a subsidy of 15% on factory price of EV purchased in UP. GI Mahotsav inaugurated. यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर कल्चर एंड पार्लियामेंट्री अफेयर्स अर्जुन राम मेघवाल ने इनॉग्रेट किया 6 डे GI महोत्सव ऑर्गेनाइज्ड बाय डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड एट दीन दयाल हस्तकला संकुल एट बदलापुर इन वाराणसी, उत्तर प्रदेश बिटवीन अक्टूबर. GI महोत्सव इनॉग्रेट हुआ कहाँ पे हुआ? बदलापुर, वाराणसी में हुआ. CNG टू बी मेड फ्रॉम गार्बेज इन लखनऊ, गाजियाबाद, प्रयागराज. गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है कि प्रयागराज, लखनऊ में एंड गाजियाबाद डिस्ट्रिक्ट में बायोसॉलिड वेस्ट बेस्ड बायो CNG प्लांट्स लगाए जाएंगे. बायोसॉलिड वेस्ट बायो CNG. North Central Railway becomes 5th zone in the country with 100% electrification. North Central Railway takes a leap forward. The entire broad gauge network becomes 100% electrified. NCR attains this feat by electrifying the last section of NCR
बरहन इटाह प्रयागराज डिवीजन एंड ईशाना नगर उदयपुरा ऑफ झांसी डिवीजन। गाइज आई थिंक आज के लिए इस वीडियो के लिए इतना बहुत है यूपी करंट अफेयर्स। बाकी करंट अफेयर्स हम दूसरे वीडियो में कवर करेंगे। थैंक यू सो मच। डोंट गिव अप, कीप गोइंग, यू कैन डू इट।